ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2022-23 ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 25 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਸੀਸੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਸੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੀਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 70 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ, ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਹੈ ਤੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਗੁਣੀ 14 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 28 ਮਾਰਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ
विद्यार्थियों सारे प्रश्न जरूरी हैं। हुण इन्हां 14 प्रश्नों के विच की होएगा, जिहड़े पहले 6 प्रश्न ने वो बहुविकल्पी हैं अते बाकी 8 प्रश्न ने जिहड़े वो तुहाडे जिहड़े हैगे ने उन्हां दे विच तुसीं एक वाक तो लैके 2 वाकां तक दा जिहड़ा उत्तर है वो दे सकते हैगे हो। तो विद्यार्थियों ये जिहड़े प्रश्न आउणगे ये पूरे पाठ्यक्रम दे विचों आउणगे, ये जिहड़े सारे पाठां दे विचों मतलब कि जिहड़ा पहला सैक्शन छड्ड के पहला पाठ छड्ड के बाकी जिहड़े पार्ट्स दे विचों ये सारे जिहड़े प्रश्न ने वो आउणे ने। तो इत्थे विद्यार्थियों तुसीं देख रहे हो थल्ले जिहड़ा फॉन्ट है वो क्लीयर नहीं आ रहा। तो जिहड़े पहला यूनिट है जिहड़ा पहला सैक्शन है सॉरी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 14 प्रश्न ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूनिट 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यूनिट 4 तक ਜਿਹੜੇ प्रश्न ਆਉਣੇ ਨੇ, यूनिट 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यूनिट 4 तक प्रश्न ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 8 प्रश्न ਆਉਣਗੇ ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 4 प्रश्न ਕਰਨੇ ਨੇ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 प्रश्न ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ प्रश्न ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ आंसर नूं किस तरह तरतीब दे नाल लिखते हो। तुहाडी सैटिस्फैक्शन हुंदी है 2-3 वाकां च तां ठीक है, नहीं जरूरी नहीं भी 2-3 वाकां ते सम अप करना है। तां तुसीं अपने जिहड़े आंसर दी जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वो चंगी तरह तुसीं ने देनी है। तां उहदी जिहड़ी लंबाई है वो तुसीं खुद तय करनी है। पर नाल दी नाल इह गल दा जरूर ख्याल रखना है कि तुसीं ने जिहड़ा इह वाला प्रश्न है जदों करोगे तां पूरे पाठ जिहड़े क्वेश्चन पेपर वाल ध्यान दे के चलना है कि तुहाडे जिहड़े टाइम मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए है। जिहड़ी टाइम मैनेजमेंट है जे सही है तुहाडी तां तुसीं क्वेश्चनां दी जिहड़ी लेंथ है आंसरां दी लेंथ है वो तुसीं वधा सकदे हो। अगे जिहड़ी गल करदे आ वो हैगा सैक्शन 3, ठीक है। सैक्शन 3 ये 12 अंकां दा ही है। तो ये विद्यार्थियों तुहानूं 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तो पहला मैं सैक्शन दूसरे बारे इत्थे मिसप्रिंट है। यूनिट 1 तो लैके यूनिट 5 तक है जिहड़ा ये सारे प्रश्न जिहड़े इस दे विच आउणगे, यूनिट 1 तो लैके यूनिट 5 तक। उस तो बाद अगे जिहड़े 6 अंकां वाले प्रश्न आउंदे ने, 6 अंकां वाले प्रश्न इहदे विच जिहड़े 150 तो लैके 250 शब्दां तक जिहड़ा तुसीं उत्तर देना है। इहदे विच जिहड़े प्रश्न पूछे जाणगे वो 4 प्रश्न पूछे जाणगे, पर 4 दे विचों तुहानूं इंटरनल चॉइस होएगी 100% दी। सिर्फ 2 प्रश्नां दे जिहड़े उत्तर देने नेगे। तां आपां कह सकदे हां भी 2 प्रश्न करने जरूरी ने 4 दे विचों। तां उहदे विच जिहड़ी इंटरनल चॉइस है वो तुहानूं पेपर दे विच ही पता लगेगा भी किहड़े प्रश्न दे विचों किस तरह की जिहड़ी इंटरनल चॉइस है। तो यह जिहड़े सारे पाठां दे विचों आउणगे, पहले पाठ तो लैके साडे जिहड़े प्रैक्टिकल नूं छड्ड के जिहड़े सारे पाठ बनदे आ उन्हां दे विचों ये क्वेश्चन आ सकदे ने। उस तो बाद विद्यार्थियों आपां सैक्शन 4 की गल करदे आ। जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन पेपर है उहदे सैक्शन 4 की गल करनांगे। यह भी एक खजाना है लुकिया होया क्वेश्चन पेपर दे विच, क्योंकि सारे दे सारे आंसर पैराग्राफ च होणगे। उपर फॉन्ट दी मिसटेक है, इनू सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तुसीं पढ़ सकदे हो। सैक्शन 4 दे विच यह 8 अंकां दा जिहड़ा होएगा ते 8 दे विचों तुसीं जिहड़े पैराग्राफ दे विचों 4 प्रश्न पूछे जाणगे। तो इहदे विच सिर्फ 4 जिहड़े प्रश्न ने वो पूछे जाणगे। वो 4 प्रश्न किस तरह भी हो सकते नेगे। सो वो प्रश्न जिहड़े हैगे नेगे वो तुहानूं मैच दा फॉलोइंग भी हो सकता है, मिलान करो भी हो सकता है। मिलान करन तो इलावा
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਲਅਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅੰਕ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 8 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 14 ਦੂਣੀ 28 ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 8 ਮਾਰਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 36 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ 36 ਮਾਰਕਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਲਝੇਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਇਹ 10 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਿਟ 5 ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ B ਬਣਦਾ B ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲਾ B ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ A ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ B ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ D ਲਿਖਤਾ 5 ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 MCQ ਹੋਣਗੇ, 14 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 8 ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਮੈਨ ਆਊਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। 14 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, 28 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਕੇ
बाकी सारे चैप्टर्स दे विचों जिहड़े क्वेश्चन आउणगे प्रैक्टिकल वाला भाग छड्ड के इस यूनिट 2 तो लैके यूनिट 5 तक ते इह विद्यार्थियों इस दे विच कोई भी ऑप्शन जिहड़ी मतलब कि तुहानूं चॉइस नहीं आएगी भी क्वेश्चन आही 14 करने ने, सारे दे सारे कंपलसरी ने। तां इह सैक्शन 1 होएगा साडे क्वेश्चन पेपर दा, साडे प्रश्न पत्र दा। अगे चलदे आ सैक्शन 2 ते। सैक्शन 2 है जिहड़े ਉਹ 3 अंकां वाले जिहड़े प्रश्न ने ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 3 अंकां ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 अंक वाले प्रश्न ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 प्रश्न करने ने। कुल प्रश्न 8 होणगे पर तुसीं करने किन्ने ने 4। तो वो 4 किस तरह कर यूनिट 1 तो लैके यूनिट 5 तक सारे जिहड़े पहले पार्ट तो लैके एंड वाले पार्ट तक वो सारे प्रश्न उहदे विचों फ्रेम होणगे पूरे पाठां दे विचों। तां इहदे विच जिहड़े आउणगे वो कुल प्रश्न 8 आउणगे पर करने तुसीं ने 4 ने। एक प्रश्न का जिहड़ा अंक होऊगा वो 3 नंबरां दा होऊगा। तां इत्थे आपां मन के चलीए भी 3 नूं जे आपां गुणा 4 नाल करांगे तां इत्थे साडे 12 अंक बनदे ने। तां तुसीं ने इन्हां विचों ਉਹ क्वेश्चनां नूं तरजीह देनी है जिहड़े तुहानूं वधिया आउंदे ने। 8 चों 4 करने ने। कई बार की विद्यार्थी की करदे नेगे कि सारे उपरों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जगह छड्ड लैंदे ने, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जगह छड्ड लैंदे ने, क्वेश्चन नंबर 3 फिर जगह छड्ड लैंदे ने। तो इस तरह विद्यार्थियों नहीं करना। जिहड़े तुहानूं बेस्ट 4 आउंदे आ चॉइस के मुताबिक वो तुसीं ने पहला करने ने। ओवर अटैम्प्ट जे करना है, थोड़े कोल समा है वाधू तो ओवर अटैम्प्ट क्वेश्चन करो, नहीं वरना की कई बार की हुंदा है कि ओवर अटैम्प्ट तुसीं क्वेश्चन करदे ने। जिहड़ा ओवर अटैम्प्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत वधिया तरीके नाल कीता हुंदा है, पर जिहड़ा पहला क्वेश्चन है तुहाडा वो बहुत जिहड़ा तरीका वधिया नहीं हुंदा। इस करके चॉइस ऑफ क्वेश्चनस है जिहड़ी इन्हां दे विच बड़ी डिपेंड करदी है कि किस तरह की चॉइस है तुसीं वो करदे हो क्वेश्चनां दी, ताकि तुहाडी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है वो वधिया हो सके, तुहाडे जिहड़े 12 अंक ने ये पक्के हो सकण। सो मेरी बार बार विद्यार्थियों को अपील है कि इन्हां क्वेश्चनों की जिहड़ी चॉइस है वो बड़ी चंगी तरह करनी है। ध्यान नाल पहला सारे दे सारे 8 प्रश्न पढ़ो, उदों पहला उस दे विच 4 प्रश्न है जिहड़े तुसीं ने छांटने ने। वो 4 प्रश्न जिहड़े तुहानूं बहुत चंगी तरह आउंदे ने वो किवें छांटने ने, वो चॉइस मुताबिक छांटने ने, वो तुहानूं प्रश्न पत्र दे विच पता लगेगा। सो ये सैक्शन साडा दूसरा सीगा। उस तो बाद विद्यार्थियों असीं आउणे आ सैक्शन 3 ते। सैक्शन 3 है जो बहुत ही अहम सैक्शन है साडा, जिहदे लई पढ़ना बहुत सारा पैंदा है, सारे पाठ पढ़ने पैंदे नेगे, पर इहदे विच 12 अंक लुके हुए ने। 12 अंक लुके हुए ने जिहदे विच 4 प्रश्न पूछे जाणगे, जिन्हां विच 100% है जिहड़ी ओह इंटरनल चॉइस होएगी। तुसीं करने ने सिर्फ 2 प्रश्न, ठीक है। सो 6 मार्क्स का जिहड़ा एक प्रश्न है यह होवेगा, तो ये 12 नंबर दे हैगे ने। सो 4 दे विचों तुसीं ने करने किन्ने आ, सिर्फ 2। सो इस प्रश्न नूं जिहड़ा करन दा तरीका है वो बहुत ही सरल अते सिंपल है। कोशिश करो विद्यार्थियों, क्योंकि जिहड़ा जोग्राफी का विषय है, भूगोल का विषय है, वह बहुत ही संजीदगी वाला विषय है। तो मैं इत्थे विद्यार्थियों नूं यह कहूँगा कि जिहड़े इस दे विच जिहड़े ओह प्रश्न करते ने तो उन्होंने पॉइंट्स दे विच ही करन। पॉइंट्स दे विच किस तरह, जिवें 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स बनते हैं। 6 पॉइंट्स नूं हाईलाइट करके उस तो बाद कंकलूजन जरूर लिखण, सिट्टा जरूर लिखण। सो पहला भूमिका भी लिखी जा सकती है प्रश्न की थोड़ी बहुत। तो वो इस तरह जे करनगे तो उन्हां दे जिहड़े नंबर ने वो बहुत सोहणे आउणगे। अदरवाइज की हुंदा है विद्यार्थी जिवें पैराग्राफ लिखदे आ, उहदी लेंथ लैके चल जांदा, उहदे विच पॉइंट्स क्लीयर नहीं हुंदे। साडी किताब दे विच तकरीबन मैनूं लगदा है भी सारे चैप्टरां दे विच पॉइंट वाइज जिहड़े आंसरस ने वो बनदे ने।
सो टैक्सट बुक बड़ी चंगी छपी हुई है। सो उहदे विच जिहड़े जिन्ने भी आंसर बनते हैं वो पॉइंट वाइज बनते नेगे। सो मैं इत्थे विद्यार्थियों नूं बार बार यह अपील करूँगा कि इस प्रश्न नूं करते हुए वह पॉइंट वाइज ही लिखण। ते पॉइंट इहदे विच सिंपल है, जेकर अंतर वाला प्रश्न आ जाता है उरे कई बार 6 मार्क्स दे विच अंतर वाला प्रश्न आ जाता है कि अंतर कई की करते हैं, जिहड़ा अंतर है वह विद्यार्थी उपर लिख देंदे ने फिर थल्ले लिख देंदे ने। इस तरह नहीं करना, अंतर भी पॉइंट वाइज लाइन मार के विचकार दी है जिहड़ी तुसीं ने लाइन मारनी है। एक साइड ते जिवें डिटरमिनिज्म लिखता, एक साइड ते तुसीं नियो डिटरमिनिज्म लिखना है। पहले पॉइंट ते तुसीं की लिखोगे डिटरमिनिज्म की डेफिनेशन, उस पासे दूसरे पासे जिहड़े पहले पॉइंट ते तुसीं की लिखोगे नियो डिटरमिनिज्म की डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट च तुसीं मेजर स्कॉलर्स लिखोगे भी इहनूं किहड़ा फॉलो करते हैं, दूसरे पासे दूसरे दे स्कॉलर्स लिखोगे। तीसरे पॉइंट दे विच ये अप्रोच है वह की कहती है तो वह तुसीं लिखोगे, तो दूसरे पासे जिहड़ी अप्रोच है वह किस तरह की है वह लिखोगे। ठीक है, सो ये हैगी सीगी साडे तीसरे सैक्शन की गल, जिहड़ा कि 6 अंकां वाले प्रश्न की गल हो रही सी। तो बहुत जेकर लैने आ तो ये पॉइंट वाइज है जिहड़ा वो जरूर तुसीं ने लिखना हैगा। चौथा सैक्शन पहला बड़ा क्लीयर जा नहीं सीगा, इत्थे 8 मार्क्स का होवेगा, जिहदे विच पैराग्राफ होवेगा। पैराग्राफ दे विच 4 प्रश्न होणगे, 4 प्रश्नों दे विच कुछ भी आ सकता है, मिलान करो आ सकता है, खाली थावां आ सकदियां ने। ठीक है, सो किसी तरह भी तुहानूं जिहड़े 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो ये यूनिट 1 तो लैके मतलब कि यूनिट 5 सारे पाठां दे विचों ये आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस जरूर करो। विद्यार्थियों को एक अपील है कि जदों वो कल्ले कल्ले चैप्टर नूं ध्यान नाल पढ़नगे, बार बार पढ़नगे, तो ये सोर्स बेस क्वेश्चन है जिहड़ा ये अपने आप तैयार हो जाएगा। कई बार की हुंदा है सोर्स बेस क्वेश्चन दे विच पैराग्राफ दे विच आंसर लुकिया पिया हुंदा है, वो नहीं पता लगता, तो उत्थे विद्यार्थी नूं थोड़ा जिहा अपना जिहड़ा इंटैलीजेंसी है, अपनी सूझबूझ है जिहड़ी वो भी वरतनी पैंदी है। सो ये ध्यान च रखना है कि तुसीं जद अपनी सूझबूझ वरतोगे तो जिहड़ा तुसीं आंसर है वो सही लिख पावोगे। सो अगे जिहड़ी चलदे हां असीं सैक्शन 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नक्शे संबंधी। ये 8 तुहानूं चॉइसिस आउणगियां, 8 दे विचों जिहड़ियां 5 स्थान तुसीं ने भरने होणगे ते एक दे विच आइडेंटिफाई करने होणगे। इहदे विच यूनिट 2 तो लैके यूनिट 5 तक है वो सारे दे सारे जिहड़े सैक्शनस ने सारे दे सारियां यूनिटां ने, मतलब कि एक पहला चैप्टर छड्ड के बाकी सारे चैप्टर जिहड़े वो कवर अप होणगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं विद्यार्थियों को अपील करूँगा कि सारे मैप चंगी तरह करन ताकि आने वाले भविख दे विचों जिवें कि यूपीएससी दीयां परीक्षावां ने जां एसएससी दीयां परीक्षावां ने, फौज दी भर्ती दीयां परीक्षावां ने, उहदे विच नक्शा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इस किताब दे विचों चंगी तरह नक्शे कर लैणगे तुहानूं अगे भी है जिहड़ा ओह नक्शियां दी जिहड़ी जरूरत पैनी है। इसे सैक्शन 5 विच उपर सैक्शन 5 ही है, ये उपर सैक्शन 8 पै गया तो मिसटेक दे नाल इसनूं सैक्शन 5 दे विच ही है, क्योंकि साडे कुल सैक्शन 5 ही ने। तो इहदे विच दूसरा जिहड़ा पार्ट है वह खाली थावां भरन वाला है। पोलीटिकल मैप ऑफ इंडिया तुहानूं दित्ता जावेगा, जिहड़ियां तुहानूं 5 चंगी तरह आउंदियां ने वो चंगी तरह भरनियां ने। विद्यार्थियों प्रयोगी अंकां दे विच 5 अंक प्रैक्टिकल फाइल अते वाइवे दे होणगे ते 20 अंक वो तुसीं साडी किताब दे विच जिहड़े प्रश्न ने, नक्शे ने ते जिहड़ियां भी चीज़ां बनाउण वालियां ने वो 20 अंक उन्हां दे तुसीं अपने पद्धर ते जिहड़े लैक्चरर साहिबान ने वो लै सकदे ने। सीसी 5 अंकां दी है, विषय की विद्यार्थियों की रुचि देखनी है, ये तुसीं विद्यार्थियों का अनुशासन देख सकते, होर भी बहुत सारे कई फैक्टर्स ने जिहड़े तुसीं विद्यार्थियों दे विच देख सकते हो। तो वो सीसी इस तरह लगाई जा सकती है। वधिया लैण अंक लैण दे संबंधी कुछ नुकते ने, पेपर सुंदर लिखाई विच लिखिया जावे, नक्शे नाल संबंधित जिहड़े प्रश्नों की वध तो वध तैयारी की जावे, नक्शे केवल पेंसिल नाल ही साफ सुथरी लिखाई विच भरे जाण। इत्थे बार बार अपील करांगे कि पेंसिल नाल ही विद्यार्थी है जिहड़े वो नक्शे भरन। वड्डे
प्रश्नों के उत्तरों नूं जिहड़ा पॉइंट्स लिख के याद किए जाण ताकि विद्यार्थी चंगे, जिवें मैं 6 अंकों वाले प्रश्न की मैं गल पहलां भी कीती सी तां ओह चंगी तरह करना है। 2 अंकों वाले प्रश्नों दीआं अगे उदाहरणां तुहानूं हैगीआं ने। जिवें पहला प्रश्न है, किहड़ी आर्थिक किरिया नूं सर्व उच्च पद्धर ते नीतिगत फैसले लैण नाल संबंधित किया जाता है। तो इत्थे ऑप्शन है क्वाइनरी खेतर, क्वाटरनरी खेतर, टर्शरी खेतर, तो कोई भी नहीं। तो उत्तर इहदा क्वाइनरी खेतर है। सैकेंड प्रश्न की जिहड़ी एग्जाम्पल है, खाना बदोशां दा सब तो पुराना धंधा की है। तो इहदे विचों जे तुसीं पढ़िया होएगा तो आंसर बड़ा क्लीयर है, स्पष्ट है, पशु पालना। अगे 2 अंकों वाले प्रश्न की जिहड़ी एक होर एग्जाम्पल है मैचिंग वाली, मिलान करो। जिवें हेठ लिखिया दा मिलान करो, कपाह दे नाल जिवें काली रेगड़ मिट्टी मिलान करती, ते कणक दे नाल जिहड़ा डी है दोमट मिट्टी ते जलोड़ मिट्टी, कॉफी दे नाल सी दा ए है परबत दोमट मिट्टी, गन्ने दे नाल जिहड़ी ओह दोमट काली ते लाल जिहड़ी मिट्टी है जिहड़ी ओह इस तरह दी ऑप्शनस वालियां जिहड़ियां तुहानूं जिहड़ियां मिलान वालियां जिहड़े प्रश्न भी आ सकदे नेगे। 2 अंकों वाले प्रश्नों के विच होर उदाहरण जिवें खाली थावां, खाली थावां, खाली थावां भी विद्यार्थियों तुहानूं आ सकदियां ने। इत्थे मैं तुहानूं जिहड़ी उदाहरण दे रही हां, आर्थिक भूगोल डैश भूगोल की महत्वपूर्ण शाख है। ठीक है, इत्थे ऑप्शनां ने भौतिक भूगोल ते मानव भूगोल, ऑप्शनां भी हो सकदियां ने, शायद ऑप्शनां ना भी होण। ठीक है, पर इनू तुहानूं आउणा चाहीदा आंसर कि मानव भूगोल है जिहड़ी ओह आर्थिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाख है। इस तरह एक होर क्वेश्चन की एग्जाम्पल है तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। गन्ना उगाउण वाले खेत विच उपजाऊ शक्ति बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए सानू काहदी लोड़ पैंदी है ना, सानू की काहदी लोड़ पैंदी है, डैश की लोड़ पैंदी है। तो इत्थे सानू रसायनिक खादां जिहड़ी ऑप्शन बनती है। ठीक है, पानी, तो ये तुहानूं बड़ा क्लीयर होना चाहिए। कॉफी दियां डैश हत्थां नाल तोड़नियां पैंदियां ने, पत्तियां तोड़नियां पैंदियां ने। क्लीयर होना चाहिए कि कॉफी दे फलियां लगदियां ने, चाह दियां पत्तियां हुंदियां ने। ठीक है, सो बड़ा उलझेवें वाला प्रश्न जा है कि कॉफी दियां फलियां हत्थां नाल तोड़नियां पैंदियां ने। तो इस तरह के जिहड़े प्रश्न भी तुहानूं आ सकदे नेगे। अगे 2 अंकों वाले प्रश्नों दी जिहड़ियां उदाहरण जिवें मैं हेठ लिखे प्रश्नों के 1 या 2 वाकां विच उत्तर दिओ। मानव दियां आर्थिक किरियावां नूं किन्ने भागां विच वंडिया जा सकदा है? भारत विच खेती करन दे किहड़े 4 मौसम हन? पैस्टोरिज्म बारे दसो। राजस्थान विच पशु चरवाहे किहड़े हन? सो इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन है वो तुहानूं 2 अंकों वाले जिहड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ने उन्हां विच आ सकते हैं। अगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिहड़ा मैं डिस्कस करन लग्गिया, आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन। भारत के दिते नक्शे विच हेठ दिते स्थानां की पहचान करो। आइडेंटिफाई एंड नेम द प्लेसिस। इत्थे मैं तुहानूं बार-बार स्ट्रेस दे के कह रहा कि आइडेंटिफाई एंड नेम द प्लेसिस ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इत्थे देखो पहला जिहड़ा हैगा उत्तरी खेतर की तेल रिफाइनरी, ये एक हैगा। उधर दूसरे पासे मैप दे विच तुसीं ABC जिहड़ी ऑप्शन देखनी है भी कित्थे आ। ठीक है, तो इहदे विच दूसरी ऑप्शन की है तेल पाइपलाइन। ठीक है, तेल पाइपलाइन। ते तीसरी हैगा अपने कोल गैस का भंडार। तो थल्ले मैं आंसर दिते आ कि किस तरह तुसीं आंसर लिखने। जिवें पहले दा B है तो उहदा आंसर की हैगा गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी बठिंडा पंजाब। दूसरे का आंसर A आ तो वह ऑयल पाइपलाइन है तो उहदा की है डिगबोई टू नुमलीगढ़। ठीक है, तो दूसरे का A ब्रैकेट च तुसीं ने देना है डिगबोई टू नुमलीगढ़। तीसरे का जिहड़ा हैगा C है ऑप्शन, उत्थे गैस भंडार है जिहड़ा उत्थे हैगा गैस का भंडार राजस्थान दे विच है। तो मांगला राजस्थान दे सकदे हो, वो राजस्थान भी दिओ। थर्ड का C ऑप्शन ते उत्थे आंसर की होएगा मांगला। ठीक है, सो इस तरह तुसीं ने जिहड़ा आइडेंटिफिकेशन वाला प्रश्न करना हैगा। ये क्वेश्चन जिहड़ा प्रश्न है ये बहुत विद्यार्थियों का जिहड़ा गलत हो सकता है। सो विद्यार्थियों अज दे लैक्चर दे विच मैनूं लगदा है जिहड़ा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की असीं गल कीती सी, सो वो तुहानूं चंगी तरह जिहड़ा समझ आ गया होऊगा। मैं उम्मीद करदा सारे विद्यार्थियों तो ते सारे लैक्चरर साहबानां तो कि उन्होंने इस कोरोना तो बाद बहुत सारी जिहड़ी मेहनत है वह विद्यार्थियों नूं करवाई होएगी। सो उस मेहनत सदका ही विद्यार्थी ने जिहड़े वो चंगे जिहड़े नंबर ने वो लै पाणगे।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9501018191 ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ WhatsApp ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।